देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। Namaskar. I welcome Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji, Minister of State Sri Anurag Thakur ji, Secretaries from the Ministry, friends from the media. After the announcement of fiscal stimulus package of rupees 20 lakh crore by the Honorable Prime Minister yesterday, the Finance Minister is going to share the details of the package under Mission Atmanirbhar Bharat. First, the Honorable FM and MOS will brief, then we will take some questions from you. Over to Finance Minister. Good afternoon. Can you hear me with my mask or should I remove it? Are you okay? गुड आफ्टरनून, क्या आप मुझे better मास्क के now? साथ सुन सकते हैं या मैं इसे हटा दूं? Good afternoon. गुड आफ्टरनून। I'm sure all of you will have heard the Honorable Prime Minister speak last night to the nation. मुझे भरोसा है कि आप He सबने laid out a प्रधानमंत्री को vision, सुना होगा a जब वो comprehensive बीती रात vision. देश के सामने आए थे। And that vision was वो laid vision out after wide and deep consultation with बहुत गहन चिंतन और मंथन के बाद तय किया several गया है sections of our society. और सोसाइटी के हर सेक्शन से उसमें And विचार लिए these गए discussions were और ये held मंथन at various levels, with various ministries, and also कई gradually स्तरों taken पर up to the level of the Prime Minister's office. कई And the मंत्रालयों Prime Minister himself में has कई been स्तरों पर चर्चा के spending बाद considerable time to make sure प्रधानमंत्री से that बात the करने के बाद inputs obtained are given due consideration and they form a part of the package अलग that's अलग being क्षेत्रों given to का the country. इनपुट लेने के बाद फिर इसको तय किया गया है। Essentially, this is to spur growth and to build a very self-reliant India. ग्रोथ का पहिया आगे And that's बढ़ाने के where लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के This लिए whole initiative is called as Atmanirbhar Bharat Abhiyan. ये पूरा कार्यक्रम And the जिसका नाम word भारत आत्मनिर्भर Atmanirbhar अभियान India is the one which you will be hearing me say quite often. जिसको आप आगे अब कई बार सुनेंगे। I know coming from South India, a lot of people wondered what it actually meant. So for their benefit, मैं I'll just दक्षिण भारत से आती हूँ और बहुत say सारे लोग ये what सोच it रहे हैं कि means इसका क्या मतलब है। in the 4 languages, subject of course to perfectionist corrections. इसीलिए Suya 4 भाषाओं Sarva में Bharadam in Tamil, इसका मैं मतलब बता रही Suya हूँ। Adarita in Telugu, Suyam Asarittan in Malayalam, and Swayam Avalambita in Kannada. Subject to correction, it may not be the perfect translation, but something to हो सकता है कि take ये it बिल्कुल closer सही to what it ट्रांसलेशन means. ना हो, So लेकिन ये Atmanirbhar वैसा ही Bharat है। is what 4 we're अलग talking अलग about. भाषाओं में आत्मनिर्भर भारत के बारे में हम बात कर रहे And हैं। you heard the Prime Minister clearly say, आपने that प्रधानमंत्री this को is सुना going to जो be ये साफ कह रहे थे resting on 5 important pillars. कि हम ये पूरा 5 पैकेज important 5 pillars. बहुत अहम पिलर्स पर टिका हुआ है। The economy, इकोनॉमी, infrastructure, इंफ्रास्ट्रक्चर, technology-driven systems, तकनीक पर आधारित सिस्टम, demography, डेमोग्राफी and demand. और So डिमांड these are यानी the मांग। 5 pillars on which we are trying to build ये वो Atmanirbhar 5 Bharat पिलर हैं जिनके ऊपर हमने The कोशिश focus की है obviously आत्मनिर्भर भारत को पैकेज को बनाने will की। be what can be defined as the factors of production of, in today's language, factors of production, all of us know that we've been hearing it: land, labor,
capital. प्रोडक्शन से जुड़े फैक्टर्स को हम सब सुनते रहे, लैंड, लेबर, say it the same way, but then हम वो- essentially referring to the very same factors of production, but उन्हीं फैक्टर्स को रेफर करेंगे, उन्हीं पर बात करेंगे, लेकिन हमारा फोकस आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रोडक्शन बढ़ाने पर होगा, जिसमें लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ इन पर होगा। मुख्यतः इन्हीं पर बात होगी, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, compliance and regulations being due diligence observed and so on. नियमों को And in और this- आसान बनाने को लेकर बात की जाएगी। The intention is to build brands. Intention is also to take local brands. हमारा local मकसद है कि लोकल ब्रांड्स को brands and build हम them बढ़ावा to a दें global level. और So उन्हें there is a global global value chain level यानी integration विश्व स्तर पर also पहचान as a दिलाएं। part of this vision which the Prime Minister has put जैसा before कि us. प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, Certainly when he says Atmanirbhar Bharat, it is not to look inwards and cut India to become an isolationist country. उनका ये मतलब नहीं It था आत्मनिर्भर certainly भारत talks के about a confident कहने का ये India मतलब नहीं था कि which इसका can मतलब rest on है its कि भारत strength and अपने also को be दुनिया able से to काट ले। contribute to the globe. The way in बल्कि which उनका कहने का the मतलब Prime ये था Minister कि rightly भारत pointed कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो और production of दुनिया में उस PPE and और ज़्यादा masks उसकी and, हिस्सेदारी बढ़े। Also ventilators to an extent has rapidly grown within these 40 days. We have the capability. We have हमारे पास the क्षमता है। enterprise to build such capabilities and help हमारे the पास world with it. ऐसी And क्षमता therefore है India shall ताकि continue हम contributing दुनिया की to मदद the भी कर globe. सकें और ग्लोबल ब्रांड बना सकें, विश्व स्तर पर और ज़्यादा पहचान You've पा also सकें। been seeing, I'm moving away from Prime Minister's last night's speech. अब मैं प्रधानमंत्री You've been के seeing भाषण से आगे बढ़ती that हूँ। the government being led by Prime Minister Modi, even in 2014-19 regime, was a listening, आपने देखा was a होगा, sensitive, and 2014 also से was a 2019 के responding दौरान government. And सरकार that's why I list before you the various ने लोगों के लिए क्या किया? reform-driven steps which have been successfully taken. It's वो important कदम for us to recall that now. जो हमने Even as we बहुत talk कामयाबी about पूर्वक उठाए, building a new India, भारत building नए an भारत को India बनाने which के is लिए going to be Atmanirbhar. एक ऐसा भारत जो If खुद I पर were निर्भर to हो। group them into different categories and list out what has been done by this government, even in between 2014 and 19, if you were to 2014 talk से about the poor, 19 के we बीच had the DBT इस सरकार ने reforms. या जो हमारी सरकार ने Based क्या किया, on हमने which डीबीटी स्कीम today, शुरू की। as we look at the migrants, look at the poor, आज आप look at the lockdown गरीबों को in देखिए, their मजदूरों को lives देखिए। and the impact it has made in their lives. The DBT enabled us to directly put money डीबीटी into के their जरिए accounts, हमें मदद and मिली they कि didn't हम even उनके have to go to खातों the में bank सीधा to पैसा collect भेज it. सकें। The bank mitras were able to come and deliver the money, and बैंक therefore मित्रों के that जरिए reform हमने सीधे उन based तक on पैसा Jan भिजवाया। Dhan accounts based on Aadhaar and जनधन based के on आधार mobile पर, technology आधार has के brought a revolution आधार in पर this country, और which मोबाइल many के आधार countries पर do recall now, and many of हमने them are not जो able किया, to do it बहुत सारे for various देश अब वो करना चाह रहे हैं और बहुत So सारे for the देश नहीं poor, कर पाए। the DBT, the micro insurance schemes, डीबीटी, PM माइक्रो Awas इंश्योरेंस Yojana, स्कीम, प्रधानमंत्री Ujjwala आवास योजना, again उज्ज्वला something which योजना, has made it possible for people to have free ये वो cooking सारी gas. योजनाएं हैं In the जिनके last चाहे 3 उज्ज्वला months. योजना का उदाहरण लें, हमने बीते 3 wouldn't महीनों have के been दौरान possible लोगों to को reach उज्ज्वला out योजना before के to have जरिए their फ्री cooking गैस gas मुहैया करवाई। given, unless the Ujjwala scheme was so अगर successfully implemented. उज्ज्वला स्कीम इतने अच्छे से लागू नहीं की जाती तो शायद ये संभव नहीं होता। स्वच्छ भारत And योजना, therefore for the आयुष poor, भारत योजना, During the last tenure, the several schemes which benefited were all reform driven. जो If I बहुत were to सारी talk स्कीम about गरीबों के लिए शुरू की agriculture गई, in the same वो spirit, रिफॉर्म से जुड़ी हुई थी। PM Fasal Bima Yojana, प्रधानमंत्री फसल PM बीमा योजना, Kisan Yojana, which PM again has Kisan come out योजना, handy, that we were able to front load the money to the Kisan इस during मौके this पर हमारे lockdown. काम आई और Otherwise it किसानों wouldn't को have been सीधा पैसा पहुंचाने में हमें मदद मिली, वरना शायद हम वो नहीं कर पाते। Krishi Sinchai Yojana, कृषि were सिंचाई all योजना, aimed at bringing reform in agriculture. Similarly, ये कृषि क्षेत्र talking में of बड़ा business रिफॉर्म था। and also अगर trying to व्यापार bring की in बात करें, better कारोबार की business बात करें, environment. PSB cleanups happen, public sector banks clean up after पब्लिक सेक्टर बैंकों में heavy load of जो सुधार किया गया, banking resulting in NPAs. Public sector banks recapitalization. पब्लिक सेक्टर बैंकों FDI में पूंजी डालना, liberalization,
ease of doing business reforms which were taken Ease down of to the doing third business से level जुड़े of reform administration governance, जो हमने सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर IBC अलग अलग reforms, स्तरों पर किया, GST reforms, आईबीसी रिफॉर्म, and जीएसटी today रिफॉर्म, because of the GST reforms you're able to see what impact और lockdown is जीएसटी having की on वजह से ही small आज businesses. हम ये जान पाए कि And लॉकडाउन का finally, कितना असर reforms हुआ, in other areas, very quickly to recall. और दूसरे अलग अलग National क्षेत्रों में Highway जो रिफॉर्म Authority, किए the गए, TOT plans, the airport privatizations, एयरपोर्टों का power sector निजीकरण, reforms, which resulted in India becoming a power surplus country. from जिसकी वजह से shortages of भारत wind. आज बिजली के क्षेत्र में 175 सरप्लस कंट्री बन पाया। gigawatts of solar targets out of 86 gigawatt has already been achieved out of that number. And 86 cleaning up गीगावाट of की the सोलर coal एनर्जी mine का sector. लक्ष्य हमने हासिल These are किया। all things which I would कोल want to माइन सेक्टर में reinforce हमारे here काम before जो we आज talk about हमने what we पिछली are अभी तक किया offering है, the Atmanirbhar Bharat. This उसकी is the वजह से foundation. हमें आत्मनिर्भर This भारत is the बनने में credential मदद with मिलेगी which the Prime और ये Minister उसकी has नींव होंगे। always been on the side of reform for better living in this country, ease of living in this रिफॉर्म country. जो कि रहने के लिए इस देश को और अच्छा बनाने में मदद कर रहे हैं। नमस्कार। कोविड-19 में देश और दुनिया के सामने बहुत सारे संकट खड़े किए और इन चुनौतियों के समय में भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अवसर देखते हैं और कहीं ना कहीं पिछले कल का उनका जो देश के प्रति संबोधन था उसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये जो संकल्प उन्होंने लिया है, ये जो सोच अपनी देश के सामने रखी है, इसने एक नई ऊर्जा देशवासियों में भर दी है। जहां अपने घरों तक सीमित थे लोग, आज वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस संकल्प में जुड़ने जा रहा है और संकट में अवसर देख रहा है। और शायद यही कारण है कि दुनिया के मुकाबले अगर भारत का देखा जाए तो इस लड़ाई में बहुत अच्छे कदम रहे। यहाँ तक कि दुनिया भर के देशों में दवाइयाँ तक पहुँचाने का भी संकट के समय में अगर किसी ने काम किया तो भारत की दवाइयों की कंपनियों ने किया, जिसमें भारत को बहुत प्रशंसा भी मिली है। यही नहीं, सबसे पहले कोविड-19 को चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए कि देश के गरीब को भूखा ना रहना पड़े, उसको कोई दुख तकलीफ ना हो। और 1,70,000 करोड़ का ये पैकेज माननीय वित्त मंत्री जी ने आप सबके सामने रखा था। और यही नहीं, कंप्लायंस की कोई दिक्कत ना हो कि आपको कानूनी तौर पर वैधानिक रूप से कोई जो नियमों का पालन कर रहा है उसमें आप रह ना जाएं, तो उसकी भी छूट 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड आपको दिया गया। फिर आरबीआई के माध्यम से भी घोषणाएं हुई जिसमें लिक्विडिटी का फायदा आप सबको मिला, देश के करोड़ों लोगों को। तो मेरा मानना यह है कि रिफॉर्म्स की जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमने बनाना है, तो उसके 5 स्तंभ की उन्होंने बात की है, 5 पिलर्स की बात की है, जिसके विस्तार में उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। मैं एक बात इसमें और कहना चाहता हूं कि ये जो हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पहला स्तंभ आधारभूत ढांचा हमारा ऐसा हो जो आधुनिक हो। और यही नहीं, हमारे सिस्टम जो है वो 21वीं शताब्दी में हमें विश्व गुरु बना सकें, उस लायक हम बनाएं। वाइब्रेंट डेमोग्राफी की हम बात करते हैं, युवा शक्ति को हम राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र निर्माण के रूप में लगाएं और उनका लाभ उठाएं। और डिमांड को कैसे बढ़ाना है और डिमांड सप्लाई चेन का समन्वय कैसे बना रहे और अर्थव्यवस्था आगे और कैसे बढ़े, इसके इस्तेमाल को करने की भी जरूरत है। बोल्ड रिफॉर्म्स का पूरा लेखा जोखा माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों का दिया है। मैं यही कहूंगा, बड़े निर्णय करने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं। चाहे वो गुजरात में आए भूकंप के समय वापस कच्छ को खड़े करने की बात हो, या आज के संकट के समय भारत में पीपीई और मास्क के निर्माण की बात हो,
और कहीं ना कहीं यही सोच भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रही है। और इस आत्मनिर्भर भारत जो मूवमेंट है, इसमें हम आप सबको जोड़ने आए हैं। 20 लाख करोड़ का ऐतिहासिक पैकेज माननीय मोदी जी ने पिछले कल घोषणा की है और प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि प्रतिदिन अलग अलग सेक्टर्स को लेकर आप सबके बीच में आकर इसकी विस्तार में हम लोग जानकारी दें। तो माननीय वित्त मंत्री जी आपको अगली जानकारी देंगे कि आज किस सेक्टर को लेकर हम आप सबके बीच में आए हैं। लेकिन बोल्ड रिफॉर्म्स 6 वर्ष भी होती रही, अब भी होगी, जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता। उस दिशा में लगातार काम चलता रहेगा। Sir, broadly explained about the reform steps which were taken मैंने आपको मोटा-मोटा बताया कि the previous हमने अभी 14 तक to 19 tenure of this government. कौन से रिफॉर्म किए, खासकर 2014 से And लेकर after the 2019 तक, 2019 elections, और 2019 के July चुनावों के बाद budget was presented. जुलाई में Post बजट that पेश किया गया, immediately, In this very hall, we met several times over जिसके several बाद fortnights इस when हॉल we में had to हम लोग respond कई बार मिले to the call of the hour, the need which was felt by the SMEs and many others. और जो भी And अलग अलग all सेक्टर this की only to ज़रूरतें थी, underline the fact that you're speaking with a sensitive, a responsive, and a government which believes in consultation. और उस पर बात हुई। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप उस सरकार से बात कर रहे हैं जो संवेदनशील है, लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है। And और कोरोना के तुरंत बाद भी हम 1,70,000 करोड़ का पैकेज लेकर आए थे। within hours of the announcement of the lockdown, लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के कुछ घंटों बाद package was announced about which प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया the गया। numbers are something which are worth recalling here because we are going to have to build on that. नंबर का जिक्र करने का मतलब नहीं है यहाँ पर। Into DBT account of 41 crore bank account holders, the Jan Dhan account holders. 41 18,000 करोड़ crore worth grain and pulse transfers, जनधन खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया, in which 48 lakh metric tons of wheat and rice have been distributed. 48 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल 69 crore का account, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। the ration card holders. 71,738 metric tons of pulses have been distributed to 6.2 71,000 मीट्रिक टन से ज्यादा दाल का डिस्ट्रीब्यूशन Aside किया from गया। this, non-card holders have also been distributed grains. जिनके पास कार्ड नहीं है उनको भी अनाज And दिया गया। I mentioned a minute ago about the Ujjwala scheme which helps मैंने कुछ दिन पहले उज्ज्वला की बात की थी, distribution of free cylinders. जिसके जरिए फ्री सिलेंडर का वितरण किया गया। Pensioners have all been. दिव्यांगों और बुजुर्गों को पेंशन दी गई, सहायता दी गई। So after the lockdown, within a couple of hours, meaning Lockdown within के a day or two, we came with that announcement. of एक the या Garib 2 दिन में Kalyan हमने package. गरीब कल्याण योजना पैकेज का With ऐलान that, कर दिया there था। was also a compliance and also due diligence related deadline dates which were postponed so that ease of compliance और could बहुत come. सारी कंप्लायंस और ड्यू डिलिजेंस की डेडलाइन भी Beginning पोस्टपोन today- की गई थी, आगे बढ़ाई गई थी। I come over to speaking about today, beginning today. आज से For the next few शुरू days, करते हुए अगले I कुछ shall दिनों be तक coming with this entire team before मैं you, इस पूरी टीम के साथ यहाँ आती रहूँगी, put out the details of आपको ये जानकारी the देने vision के which लिए। the PM has put forth yesterday. प्रधानमंत्री ने PM जो vision विजन for कल सामने Central रखा है and उसके India, बारे में We will come with the details in various tranches beginning today. हम And जो we अलग will अलग not क्षेत्रों में In अब each of सहायता the देने जा रहे हैं tranches उसकी डिटेल आपको देते रहेंगे। that we do have a responsibility towards the poor of this country, towards the needy हमारे of this पास country, बहुत बड़ी जिम्मेदारी towards है the इस देश के migrant गरीब के workers of प्रति, this country, the Divyang and the aged. दिव्यांगों के So प्रति, the tranches प्रवासियों will के of course प्रति। be for all our convenience, suitably bringing grouped items which have some correlation. Alongside, you also had the Reserve Bank of India coming up with a lot of liquidity infusion. इसके साथ ही रिजर्व about बैंक ऑफ which इंडिया ने बहुत सारी लिक्विडिटी data which will be पैदा shared करने with की you all. कोशिश We'll की। go into greater detail about the quantum that they came up with the LTROs and the TLTROs. डेटा आप सबको I'm पता है not जिस तरह से getting into उन्होंने it so that LTROs, you'll get the TLTROs data, but we are not going into it. का इंतजाम किया, मैं उसमें अब आपको ज़्यादा डेटा नहीं We बताऊंगा। also ensured
the Revenue Secretary is here, we also ensured that 18,000 crores of refunds through a special drive were given for all the income tax. हमने इनकम टैक्स का 18,000 करोड़ रुपए का रिफंड भी टैक्स पेयर्स को दिया। The payments. So the intention being liquidity should be in the hands of the people. हमारा मकसद था कि लोगों के हाथ में कैश For आए, all those who लिक्विडिटी have बढ़े। up to 5 lakhs of refund dues, we cleared it. 5 14 लाख lakh तक का taxpayers have जो रिफंड ड्यू था वो हमने क्रेडिट किया उनके खातों में। So with that said, today इसके साथ ही has about 15 different measures. हम आज 16 अलग अलग मेजर्स, 6 of which pertain to the micro, small and medium जिसमें से 6 MSME इंडस्ट्री के लिए हैं, उद्योग के लिए कुटीर और लघु उद्योग के लिए ऐसे कदम 6 ऐसे कदम to relate to the उठाएंगे। employees provident fund, जिसमें to जो relate EPF से to जुड़े the होंगे, NBFCs, housing finance जो NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस and, कंपनी से जुड़े होंगे, MFIs, MFI से जुड़े होंगे, microfinance institutions. माइक्रो फाइनेंस One relates इंस्टीट्यूशंस, to DISCOMs, one डिस्कॉम relates से to जुड़े होंगे, contractors, कॉन्ट्रैक्टर से one जुड़े होंगे, relates to real estate, रियल and एस्टेट से 3 जुड़े होंगे are tax measures that we've taken. और 3 So I'll टैक्स get मेजर्स into the होंगे। detail of today's मैं आपको आज इसकी tranche डिटेल of announcements. बताने I जा रही said हूँ। there are 6 major steps for the MSMEs. जैसा कि मैंने First कहा, one. MSMEs के लिए 6 स्टेप लिए गए। There is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. MSMEs को कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड करवाया 3 जाएगा। lakh crores. 3 लाख करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है। 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan or 100 crores whose turnover is will benefit from this. जिसका आउटस्टैंडिंग या These बकाया loans will 25 have करोड़ a है और 100 2-year करोड़ रुपए tenure तक का जिनका टर्नओवर है, And उन there will be a MSMEs को इसका moratorium फायदा given मिलेगा। for 12 months. 12 महीने के लिए These are ये going दिया to be जाएगा। 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal. सरकार and को interest. 100% NBFCs को 100% this बैंक is गारंटी going to be सरकार देगी। Available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals required. So ना I तो guess कोई this will कोलैटरल benefit चाहिए होगा और 45 ना lakh कोई गारंटी units चाहिए होगी, so that they can resume their business activity and also safeguard jobs. ताकि वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को शुरू कर सकें और जॉब्स पर खतरा ना आए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जहां सबसे पहले कोविड हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रावधान किया गया था, वहीं पर 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो गेहूं या चावल देने का प्रावधान किया गया और पूरे देश भर में पीडीएस के अलावा अतिरिक्त ये 5-5 किलो उनको दिया गया, पिछले महीने भी और इस महीने भी। इसके अलावा ये प्रति व्यक्ति 5-5 किलो था और प्रति परिवार दाल देने का भी काम किया गया 1 किलो। और इसके अलावा जो हमारे वृद्ध, विधवा, दिव्यांग हैं उनको भी जनधन खातों में सीधा पैसे डाले गए, 500-500 रुपये, 1000 रुपये उनको टोटल डाला गया। इसके अलावा जो 20.5 करोड़ जनधन योजना खाता धारक थे, ऐसे 41 करोड़ खातों में भी 52,606 करोड़ रुपया अब तक ट्रांसफर कर दिया गया है। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के जो उपभोक्ता हैं उनको मुफ्त में 3 महीने एक सिलेंडर देने की बात हुई थी, जब तक उनको सिलेंडर की आवश्यकता है उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई और दे भी दिए गए। यहाँ तक कि जो पीएम किसान के लिए भी 2,000 रुपया ऐसे करोड़ों किसानों के खातों में उसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो जितनी घोषणाएं उस पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत की गई थी उन पर सारे कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए और करोड़ों भारतीयों को इसका लाभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला है। जहां तक व्यापारी वर्ग की बात है, आम आदमी की बात है, कंप्लायंस का बर्डन उसके ऊपर ना आए, घर से बाहर नहीं जाते थे, तो उसके सामने जो संकट था कि वो कैसे समय सीमा रहते अपनी कंप्लायंस पूरी कर सके, उसमें भी उसको छूट दी गई।
और उसको भी 3 महीने आगे बढ़ाया गया, जिससे उसको लाभ मिला है। आरबीआई ने भी जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की, उससे लाखों करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में आई है, जिससे पूरे देश को लाभ मिला है। और इसकी जानकारी आप सबके सामने पहले भी रखी है, केवल आज एक बार फिर आपके ध्यान में लाने की ज़रूरत पड़ी तो उसको किया है। एक जो मीडिया के माध्यम से हमारी जानकारी हमें मिली और जो वीडियो कॉन्फ्रेंस और बाकी सब वार्तालाप बाकी लोगों से हुआ, मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग जो है, इन सब के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी कि पैसों की भारी कमी थी। इन सब के लिए क्या किया जाए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो हमारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग है, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, इन सबका एक बहुत महत्व है। 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं। तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले, विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पर छूट रहेगी और 4 वर्ष के लिए उनको ऋण दिया जाएगा। तो 3 लाख करोड़ रुपए का ये ऋण, ये हमने बगैर किसी गारंटी, बगैर किसी कोलेटरल के भारत के मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर और गृह उद्योग के लिए मोदी सरकार ने करके दिया है। I just move to the next one, which is about a 20,000 crore subordinate debt proposition which we are bringing. If the earlier one, which was just now explained by the MOS, was for standard MSMEs who because MSMEs of के लिए couldn't move forward because they didn't have money, they didn't have cash coming in. So for buying raw materials or paying the wages, if they had a problem, you had that emergency credit line which we spoke about just a minute ago. Now I come to talking about subordinate debt. अब मैं सबऑर्डिनेट डेट, जिसके जरिए हम 20,000 करोड़ रुपए की सहायता देंगे जो संकट में छोटे, लघु, कुटीर उद्योग हैं। स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए है ये पैकेज, जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है। सबऑर्डिनेट डेट कार्यक्रम के जरिए 20,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी हम डालेंगे। 2 लाख एमएसएमईज को इससे फायदा होगा। वो एमएसएमई जो एनपीए में आ गए हैं, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। The government will be providing about a 4,000 crore as its contribution to the CGTME. सरकार इसमें 4,000 करोड़ का की सहायता देगी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के जरिए। क्रेडिट गारंटी स्कीम बैंक्स को आंशिक सहायता दी जाएगी। एमएसएमई के प्रमोटर्स को बैंक के जरिए सहायता मिलेगी। जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग या कुटीर या गृह उद्योग है, उनकी इन परिस्थितियों को देखकर गौण कर्ज या अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इन स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए किया गया है, ताकि इनकी जो कमी आती थी उस कमी को दूर किया जा सके। और इसमें भी लगभग 2 लाख से ज़्यादा मध्यम, लघु, सूक्ष्म, कुटीर उद्योग को लाभ मिलने वाला है और ये 20,000 करोड़ का गौण ऋण ये तनाव वाली एमएसएमईज को दिया जाएगा। The next of the MSME linked
steps that we are taking. This अगला is the MSME से third. जुड़ा कदम है There is a fund being created फंड ऑफ फंड्स क्रिएट किया for जाएगा infusing about 50,000 crore. जिसके जरिए 50,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी MSMEs This को। will benefit those MSMEs who have ये उन potential and MSMEs who को are सहायता viable. देगा So we जिनके अंदर spoke क्षमता है। about those who are standard. We spoke about those who are हमने उनके NPAs बात and की stressed. जो Now कि I'm talking स्टैंडर्ड about हैं, हमने उनके MSMEs बात की जो who संकटग्रस्त may be हैं, doing viable business अब and उनकी who बात needs करते हैं hand-holding जो because of वायबल the बिजनेस कर situation रही हैं thanks to the COVID. So और this कोरोना fund की of वजह से funds संकट में आ गई हैं। with a corpus of 10,000 crores through mother fund and daughter funds. फंड ऑफ फंड्स 10,000 will be करोड़ की able to सहायता से provide सेट किया जाएगा The growth potential MSMEs और ये support MSMEs को ग्रोथ के लिए और वायबिलिटी के लिए दिया जाएगा, to expand their capacities. And this उनकी will क्षमता also को बढ़ाने encourage के लिए them दिया जाएगा eventually to get listed in the markets which they can choose. और उनको हम आगे बढ़ावा देंगे मार्केट में लिस्ट करने के लिए। जो मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग अच्छा कर रहे हैं, विस्तार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके आकार को बढ़ाने की या क्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, तो उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है और इस फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगी, ये हम करने जा रहे हैं। इससे इन सभी अच्छा काम करने वाले मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। The next one is something which all of us have been waiting for a और long time. about अगला the कदम है definition जिसका of हम बहुत MSMEs. समय से वेट I'm कर sure रहे you थे, heard from several MSMEs sources की नई परिभाषा। that, this discussion has been going on. We have now come to a stage where we can happily announce अब हम इसको definition being changed बता सकते in हैं। favor of the MSMEs, because there was always this fear. in अब हम very successful MSMEs की MSME परिभाषा के बारे में बात that करेंगे if जो they कि अब बदली outgrow जाएगी। the size of what is defined as an MSME, they lose the benefits that they get as an MSMEs के साइज की वजह से, जिनका So, outgrowing साइज this की वजह से जो definition MSME के meant परिभाषा outgrowing बाहर हो जाते हैं, वो and going MSME out को of मिलने वाले फायदे से receiving वंचित रह benefits. जाते हैं। Therefore, MSMEs preferred to remain within the definition rather than grow. Now what we are coming, अब हम करने जा रहे हैं जो वो बताते हैं हम a आपको। change in the definition of MSME. अब हम MSME So की that परिभाषा बदलने जा रहे They हैं, need not worry about growing in size. जिसके बाद उनको will अपने still be able to get आकार को quite a lot of बढ़ाने में benefits कोई दिक्कत which नहीं होगी, otherwise कोई चिंता as नहीं an होगी और MSME उनको they MSME had का got. फायदा मिलता रहेगा। So now how do we change it? तो अब I हम इसको told you कैसे why we बदलेंगे? are changing the definition. मैं आपको बताती हूँ कि हम How इसको are क्यों the बदल रहे changes हैं। being brought about? What exactly is the change which is coming in? आखिर में ये change is बदलाव है क्या? That investment limit which defined an MSME is being revised upwards. So you can be MSME में निवेश की slightly जो more लिमिट है, larger निवेश की invested जो company, सीमा है, but you उसको still- बदला जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। And then I'll come to the amounts अब which मैं is shown in the chart there. उस But the idea is Amount के even बारे में with बताती हूँ। increased investment, you'll still be defined only as an MSME. You shall not get out of the benefit which is given to you. अगर आपका as आकार an बढ़ता है, इसका मतलब नहीं कि आप Second is MSME के से बाहर आ additional जाएंगे। criteria to define an MSME is being brought in, and that criteria. दूसरा है एडिशनल क्राइटेरिया जो MSME So that is being के दायरे को brought in बताएगा। newly now. Earlier it was only investment size. Now investment size and or additional. पहले ये केवल turnover इन्वेस्टमेंट size is साइज being था, brought in. अब ये इन्वेस्टमेंट And साइज और earlier, टर्नओवर the दोनों को distinction which देखकर prevailed between परिभाषित किया जाएगा। Manufacturing unit, and therefore their definition was on slightly different account. मैन्युफैक्चरिंग Service यूनिट unit, या उसके their अलावा definition was on उनके slightly लिए different अलग criteria. डेफिनेशन होंगी Now और that सर्विस यूनिट होगा, उनके लिए differentiation अलग अलग Manufacturing परिभाषा होगी। and service MSME are being removed. Manufacturing MSME or service-based MSME shall all be defined similarly. And then, therefore, the chart that is there before MSME you will tell चाहे you वो मैन्युफैक्चरिंग what was सेक्टर की हो earlier या सर्विस and what सेक्टर is की हो, What was earlier defined वो सब with अब an एक ही investment of तरीके से 25 डिफाइन की जाएंगी। lakh as micro unit will now have investment allowed till 1 crore.
पहले 25 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट वाली यूनिट माइक्रो यूनिट मानी जाती थी। अब वो 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट तक की यूनिट को माइक्रो एमएसएमई माना जाएगा। Were called as micro earlier. Now, because the distinction is removed, सर्विस सेक्टर में जिसमें 10 लाख तक के इन्वेस्टमेंट की माइक्रो यूनिट थी, even if the investment is 1 crore. अब वो भी 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट या 5 करोड़ के टर्नओवर का अगर उनका टर्नओवर है तो वो माइक्रो यूनिट मानी जाएंगी। अब हम निवेश के साथ साथ टर्नओवर का क्राइटेरिया भी लेकर आए हैं, जिसका निवेश 1 करोड़ तक और टर्नओवर 5 करोड़ तक है, वो माइक्रो यूनिट माइक्रो इंटरप्राइजेस कहलाएगी। And your turnover can be 5 crore, up to 5 crore. निवेश 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ तक माइक्रो यूनिट कहलाएगी। 5 crore manufacturing enterprise services was up to 2 crore. Now the 5 करोड़ निवेश मैन्युफैक्चरिंग में और 2 करोड़ निवेश सर्विस इंडस्ट्री में जो इंटरप्राइजेस थे वो स्मॉल इंटरप्राइजेस कहलाते थे। लेकिन जो ये आप चार्ट देख रहे हैं, इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि अब क्या बदलाव आया है। इसकी परिभाषा में कम दहलीज होने के कारण ये लगातार संकट रहता था कि अगर हम इससे बाहर जाएंगे तो हमें जो हमारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, उससे हाथ धोना पड़ेगा। और यही कारण था कि हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु उद्योग कभी बड़ा बनने का सपना नहीं देखते थे, और सपना देखते भी थे तो ये जो सीमा इसके लिए रखी गई थी, कम दहलीज थी, इसके कारण ये बड़े नहीं हो पाते थे। और कहीं ना कहीं जो आज कंपटीशन है उसमें फिर ये बहुत पीछे रह जाते थे। वर्षों लंबित मांग है, वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूं, चौथी बार एमपी बन गया, कब से शुरू हो रही, आज तक वही मांग है। मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर ये कदम उठाने के लिए कहा है। और जो पहले क्राइटेरिया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा, और सर्विस एंटरप्राइजेज जो थी वो 10 लाख तक की अगर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा। अब इसमें एक बदलाव किया गया है कि निवेश की लिमिट को तो बढ़ाया ही गया है, साथ में कारोबार को भी जोड़ा गया कि आपने व्यवसाय या कारोबार कितना उस वर्ष में किया है। तो इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर माइक्रो के लिए 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा, तो सर्विस सेक्टर को भी माइक्रो में आने का लाभ मिला है। तो 1 करोड़ से कम निवेश करने वाले को माइक्रो इंडस्ट्री में जो 5 करोड़ तक का व्यापार कारोबार करेगा उसको माइक्रो कहा जाएगा। स्मॉल वाले के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने का प्रावधान, और मीडियम जो है उसमें 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक की टर्नओवर। तो आप कल्पना कीजिए कि कल तक जो शायद मीडियम वाले के लिए आता था वो आज आपके स्मॉल वाले के लिए भी उससे बेहतर ऑप्शंस आकर खड़ी हो गई। तो इससे हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। एक और बैंकों का हाथ पकड़ना, पैसा देना, दूसरी तरफ से डेफिनेशन चेंज करके उनके आकार और क्षमता को बढ़ाने का अवसर देना, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम इस दिशा में लिया गया है। I move to the 5th step in the MSMEs. I said total 6 measures have been अब मैं एमएसएमई के 5वें कदम की ओर बढ़ूंगी। The 5th one is अब 5वीं की बात that for करती हूँ। government procurement, गवर्नमेंट जो tenders प्रोक्योरमेंट up करती to है, 200 crores टेंडर 200 करोड़ तक, will no longer be on global tender route. वो अब ग्लोबल रूट से नहीं लिए जाएंगे। Global tenders ग्लोबल will be टेंडर्स disallowed in government procurement. मान्य नहीं होंगे। Tenders up to 200 सरकार के खरीद के लिए 200 करोड़ तक की सीमा तक। Majority of the MSMEs in India were unable to supply those big mother units, as you may call, big, large companies, who they were serving all the while. Suddenly the conditions became
based on the global tenders, unmatchable by our ग्लोबल MSMEs. टेंडर की वजह से हमारे देश की MSMEs उनका मुकाबला नहीं कर पाती थी, They actually grew as ancillary units. तो As a अब result, उनको many of our यहाँ पर MSMEs एक were not अच्छा मौका मिलेगा। able to participate in supplying products to many of these large units. So by बड़े स्तर के यूनिट में अब हमारे देश की MSMEs भी हिस्सा ले पाएंगी। तो 200 करोड़ या उससे कम के टेंडर में ग्लोबल कंपनियां टेंडर नहीं डाल पाएंगी। This will make MSMEs do their business with a lot more confidence. and इसकी carry वजह on से with it. देश के MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, Will also then देश be able आत्मनिर्भर to बनेगा। serve Make in India because इसके अलावा मेक इन इंडिया को भी मदद मिलेगी, participant in government purchases. क्योंकि सरकार अब 200 करोड़ तक की खरीद देश से ही करेगी। पिछली 2 स्लाइड्स में भी आपने देखा होगा कि कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए जो बड़े कदम उठाए गए हैं, 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री और कोई नई गारंटी दिए बिना एक और से ऋण उपलब्ध करवाना, उसके अलावा जो बाकी कदम उठाए गए और उनकी परिभाषा बदलने का काम भी किया गया, तो ये कदम उससे एक और स्तर ऊपर है कि ये सब बदलने के बाद उनको कामकाज जब मिले तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं अनफेयरनेस जो होती थी उसमें हमारे लोकल उद्योग वो पीछे रह जाते थे। तो लोकल को बल, लोकल से ग्लोबल तक जाने की बात जो कल तक प्रधानमंत्री जी ने कही, उसी दिशा में एक ये कदम है। लोकल के लिए वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं, इसमें यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। इसमें हमारे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया है। The sixth step towards MSMEs is MSME के तहत छठा कदम है, post-COVID trade fairs, exhibitions are going to be very difficult. कोरोना के बाद So we ट्रेड shall फेयर ensure that e-market और linkage एग्जीबिशन जैसी provided चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई across the हैं। board for all these MSMEs so that they're इसलिए able अब to हम find their market ई मार्केट easily in the MSMEs absence को of मुहैया being able to कराएंगे ताकि वो participate in trade fairs which अपना cannot be प्रमोशन done कर in सके, environment. ताकि ट्रेड फेयर और very एग्जीबिशन important, ना होने की वजह से नुकसान की Government of भरपाई की जा India सके। and also CPSEs सरकार और where there are CPSEs receivables by MSMEs. We now announce that within the next 45 days, अगले 45 all दिनों their में receivables will be cleared. The CPSEs and Government of India will honor every MSME receivable within the next 45 अगले days. 45 दिनों में MSME से जो रिसीवेबल मिले उनको क्लियर किया जाएगा। इसी तरह से एक बार फिर कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए ये जो चुनौतियां कोविड-19 के समय शुरू हुई कि घरों तक सीमित होना पड़ा और आप कहीं जाकर सामान बेचने में दुविधा आती थी, तो ई मार्केट लिंकेज करने की बात की, क्योंकि ई कॉमर्स का आजकल ज़माना भी आया है, वो भी होगा। और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इन्वॉल्व हो सके, उनका शामिल होना हो, प्रदर्शनियों में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और जो हमारे सार्वजनिक केंद्र उपक्रम है उसमें जो अगर उनके कोई पेंडिंग पेमेंट्स है, सरकारी है या PSU उसमें है, उनको भी अगले 45 दिनों में बल देकर वापस उनकी पेमेंट हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट हो, ताकि उनको राहत मिल सके। I now move to talking about EPF. अब मैं EPF के बारे में बात You were करूंगी। aware during the Pradhan Mantri Garib Kalyan package, some measures were extended for the EPF. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमने In that, EPF के we कुछ had कदम said उठाए थे। Units which have 100 workers, 90% of whom are earning less than 15,000 rupees, will be जिनकी able to सैलरी draw 15,000 से from कम है, their उनमें EPF, 90% from the जिस funds, यूनिट में because they needed 90% money लोगों in की their सैलरी hands. 15,000 से कम है, उनके We have now, PF का and पार्ट for हमने 3 months, देने की बात कही the थी। payment of EPF also was given relaxation. What I would now to say, like to say before you is अब मैं जो आपको बताना चाहूंगी वो है liquidity relief is being given for all EPF establishments.
सभी ईपीएफ से जुड़े संस्थानों को In this, लिक्विडिटी रिलीज की गई है। 12% which is paid by the employer and 12 by the employee 12% कर्मचारी का और 12% नियोक्ता का। We extend the support which Government of India gave जो सपोर्ट भारत सरकार ने another दिया 3 months. वो अगले 3 महीनों के लिए बढ़ाया जा रहा है। We had given it for March, April and May. हमने मार्च, अप्रैल और मई के लिए ये The सहायता दी payments were थी made into their eligible accounts by Government of India जो for हमने March, April and May. उनके खाते में 3 महीनों के Nearly लिए 3.6 भुगतान lakh किया। establishments benefited from this. Liquidity relief of करीब 3,67,000 कंपनियों को इसका फायदा होगा। to 72.22 lakh employees is now 72 being लाख proposed to से be ज्यादा provided कर्मचारियों को इसका फायदा पहुंचेगा। this contribution for the next 3 months also. अगले 3 महीनों के लिए July, उनको इसका August, फायदा और मिलेगा। June, July and August 2020. जून, EPF जुलाई, अगस्त contribution will 2020 be paid का by Government of India, ईपीएफ and कंट्रीब्यूशन this shall provide भारत सरकार 2,500 करेगी। crore liquidity support. So ताकि what was given earlier उनको for March, April and May सहायता दी जा सके is now और उनके being पास extended पैसे to another बचे। 3 months, which हमने will 3 be महीने के लिए June, किया था, July and August, अब अगले 3 महीनों के लिए जो कि जून, जुलाई, अगस्त है, infusing हम 2,500 उसकी मदद crore करेंगे, उनकी मदद करेंगे। liquidity and 72.22 lakh 72 लाख से ज्यादा employees कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। 1,70,000 करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि ईपीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12% भारत सरकार देगी। और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए, और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, जब कर्मचारी का 12% हिस्सा भी और नियोक्ता जो नौकरी देने वाला है उसका 12% हिस्सा भी भारत सरकार देगी, और ये कुल मिलाकर 2,500 करोड़ के लगभग का लाभ इनको मिलेगा। The next on EPF again. ईपीएफ पे In आगे order to provide more फिर से बात करते हैं। take-home salary for the employees, कर्मचारी and also ज्यादा to से give ज्यादा relief सैलरी to घर ले जा employers सके in the payment of PF, और नियोक्ताओं को फायदा हो, been covered under the earlier description. तो जो लोग पहले इसमें कवर नहीं थे, 100 employees, 90% of whom are drawing less than 100 15,000, एम्प्लॉय तक जिसमें से 90% की सैलरी 15,000 से कम थी, उनके लिए हमने ये सहायता दी थी, जिसको 3 महीने और आगे बढ़ाया है। one in EPF now अब दूसरे कदम के तहत statutory PF contribution वैधानिक पीएफ योगदान is being reduced from 12% to 10%. 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। Employers need to pay only 10% and not 12% so that they तो have अगले 3 महीने तक कंपनियां या नियोक्ताओं को 12% की बजाय 10% ही for the पीएफ में central कंट्रीब्यूशन public करना sector पड़ेगा। enterprises and for state PSUs, we will continue to pay 12%. So this reduction is not for the government. However, government employees will government हालांकि ये कटौती सरकार के लिए नहीं है, to 12%. सरकारी कर्मचारियों के खाते में सरकार 12% ही डालेगी। Will be given the advantage of paying only 10%. निजी कंपनियों और नियोक्ताओं को 10% ही एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। 750 crores for both the employee and employer will be available for the next 3 months. 150 करोड़ रुपए का फायदा कर्मचारी और नियोक्ताओं दोनों को इससे एक और होगा। प्रावधान, क्योंकि आज के समय पैसा कर्मचारी के हाथ में भी कैसे ज़्यादा हो, इसमें भी एक बड़ी राहत देने का प्रयास इसमें किया है कि जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, जिनका ईपीएफ का योगदान है, वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12% से कम करके 10%
अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो सरकारी हमारी संस्थान है, सेंट्रल पीएससीज हैं, इनके लिए 12% ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इससे कुल मिलाकर 6,750 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सपोर्ट इनको मिलेगा और एक तरह से 6,750 करोड़ रुपया ज्यादा इनके हाथ में आएगा। The next one is about non-banking financial companies. अब अगला housing कदम है finance corporations. एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस microfinance कॉरपोरेशंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस We के have लिए। been hearing, हम in सुनते spite रहे of a हैं, lot of steps which the RBI took, in spite of all the provisions that इसके were बावजूद कि between the बहुत सारे July कदम budget आरबीआई ने उठाए, it was हमने felt बहुत that सारे the कदम फरवरी के बजट में उठाए। were not able to get enough resources. And उन लोगों पर से particularly some NBFCs संकट दूर नहीं were हुआ। not very highly rated had particular difficulties in comparison to the others. So, Government of India now सरकार launched a 30,000 crore special अब liquidity. 30,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च करेगी। Investment will be made in both primary and इस secondary स्कीम के market तहत transactions दोनों where investment grade debt papers, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, equity, this is taking and buying debt papers of NBFCs, Housing Finance Corporation. प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट में एनबीएफसीज, एचएफसीज और एमएफआईज के लिए They can be investment quality. डेट पेपर, So, इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट पेपर लॉन्च किए we जाएंगे। expect will have an impact on those struggling NBFCs who हम need उम्मीद करते money हैं to carry on कि with वो business. एनबीएफसी जो And these संकट में हैं और पैसे के लिए जिनके पास पैसे की कमी है, उसको इससे मदद मिलेगी NBFCs to keep their network of MSMEs served, ताकि वो एमएसएमईज को absolutely सर्व कर सकें। necessary. And these securities with which you're going to buy these debt papers will ये be डेट पेपर fully यानी ये guaranteed प्रतिभूति by- पूरी तरह से सरकार they will की be fully गारंटी के guaranteed साथ by होंगी, Government of India. यानी We भारत hope सरकार that this will also bring इन in पर a गारंटी lot of देगी। difference for NBFCs who have access to small and micro units, and therefore we want to ease the flow of credit. हम चाहते हैं कि NBFCs कर्ज have का only not so good फ्लो debt बना रहे और जो कंपनियां एमएसएमईज को कर्ज देती हैं उनको कोई दिक्कत ना है, इसलिए हमने कदम उठाया है। एनबीएफसी या फिर हमारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, इन सब के लिए जो इनके पास लिक्विडिटी की कमी आती थी, धन का अभाव होता था, उसके लिए ये नई योजना लेकर आए हैं जिसमें 30,000 करोड़ रुपए का विशेष तौर पर प्रावधान किया जाएगा। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ये होगी जिससे इनके धन की आपूर्ति भी होगी और इसके माध्यम से जहां एक और हाउसिंग सेक्टर को बल मिलेगा, एमएसएमई सेक्टर को बल मिलेगा, उसका भी लाभ हमारी अर्थव्यवस्था में और नीचे आम आदमी को पहुंचेगा और इसका पूरी तरह से गारंटी भारत की सरकार देगी। The next facility also for the NBFCs अगली सुविधा भी एनबीएफसीज के लिए है to give 45,000 crore liquidity infusion through a partial जिनको credit guarantee 45,000 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम It's an existing scheme, but we are expanding के जरिए। its scope. हमारे पास एक Expanding पहले से एक scope मौजूदा because स्कीम है, it will now लेकिन हम cover इसके स्कोप को borrowing, बढ़ा रहे हैं। such as primary bond issued, the commercial papers. So all these will constitute the liability side of the balance sheet, but we are getting into that area also. But in this case, as different from the previous one, 20%, the first पहले से 20% अलग loss alone will be borne by the guarantor, which is Government of India. अगर कंपनियों को घाटा होता है तो पहला 20% So घाटा in this again, AA rated भारत की papers सरकार की below, तरफ से वहन किया जाएगा। and also below that will all be included. Even unrated papers will be eligible for investment. This we think will Unrated help papers many भी of investment के microfinance लिए institutions, and with this पात्र होंगे। money goes into their hands. Even based और on unrated papers, we guess they will have liquidity to जो reach out ऐसे to the पेपर MSMEs जिनकी who may be in the रेटिंग कम है farm area. वो भी इसके लिए पात्र होंगे और 45,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी पहली इससे 30,000 आएगी। करोड़ की लिक्विडिटी गारंटी स्कीम लेकर आए थे,
लिक्विडिटी स्कीम लेकर आए थे एनबीएफसीज के लिए, एचएफसीज और एमएफआईज के लिए। वहीं पर अब आंशिक ऋण गारंटी योजना, ये लगभग 45,000 करोड़ रुपए की एनबीएफसीज का इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें भारत सरकार गारंटर होगी, जो 20% का नुकसान इसके द्वारा वहन किया जाएगा। और यही नहीं, इसमें AA पेपर और इससे भी नीचे वाले जो हैं उसको भी इसमें पैसा मिल पाएगा, ऋण मिल पाएगा। और इसके अलावा जो अनरेटेड पेपर एलिजिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी इसमें प्रावधान किए गए हैं, ताकि ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ सके, ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और कुल मिलाकर इससे भी नई लैंडिंग जो है, यानी कि कर्जा दिया जा सके सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को और आम नागरिकों को भी मिल सके, उसके लिए इसका प्रावधान किया गया है। I move to talking about the DISCOMs. अब मैं डिस्कॉम्स के बारे में बात करूंगी। DISCOMs today are facing unprecedented cash flow problems. आज के समय में डिस्कॉम्स अप्रत्याशित Otherwise, नकदी की कमी से जूझ रहे हैं। power generating companies, you know, all the states, DISCOMs are in serious crisis. आपको पता है कि हर राज्य की डिस्कॉम कंपनी एक गंभीर समस्या में है। There is a liquidity, emergency liquidity injection, which is happening to the extent of 90,000. हम 90,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता इनको देंगे। Finance Corporation, REC, the Rural Electrification Corporations, both of them put together will infuse liquidity of 90,000 crores to all the DISCOMs. सभी तरह के डिस्कॉम्स को ये सहायता मिलेगी। They are sitting there without getting paid. In turn, they are not able to pay the GENCOs. In turn, the GENCOs are wondering where they will have more money to pay for producing electricity. And at a time when we are talking about Atmanirbhar Bharat, उस वक्त जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, rightly claiming the credit for having made India हम उस वक्त जब इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि हम भारत में सरप्लस बिजली बना रहे हैं, उस समय भारत में डिस्कॉम्स के पास पैसा नहीं है। इसलिए हम वन टाइम पीएफसीज और आरईसीज को, डिस्कॉम्स को 90,000 करोड़ रुपए का की लिक्विडिटी मुहैया करा रहे हैं। The guarantee, the amount which is being infused on guarantees being given by states. और इसकी गारंटी अब राज्यों के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। Will pay the GENCOs in turn will clear their dues and keep the cycle moving. Now, what does this do to the customer? The customer, we want the benefit to be passed on to the customer. हम इसका फायदा कस्टमर को भी पहुंचाना चाहते हैं। Companies that they shall give rebate to those DISCOMs जो shall pass these benefits to the final customer. So we जो are डिस्कॉम कंपनियां हैं to the वो इसका central फायदा public sector generation companies कस्टमर्स that तक all पहुंचाएंगी। the money from the इसलिए हम इसको साफ कर रहे हैं to pass it on again. कि जिन कंपनियों को इसका फायदा होगा वो अपने ग्राहकों को इसका फायदा दें। Of liquidity, इसलिए cash desperation, वन टाइम कैश की नकदी की समस्या से जूझती हुई कंपनियों को हम 90,000 करोड़ रुपया मुहैया करा रहे हैं। कंपनियों की आय में जो भारी कमी आई है और लेनदारी जो इनके कई राज्यों से बढ़ी है, उसके कारण भी ये अभूतपूर्व नकदी प्रवाह की स्थिति इनको देखनी पड़ रही है। इन परिस्थितियों में आम उपभोक्ता को भी नुकसान ना हो, बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वितरण करने वाले भी इस अभूतपूर्व समस्या में कहीं उलझकर ना रह जाए, इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है, बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। और ये 90,000 करोड़ रुपया जो बिजली वितरण कंपनियों को दिया जाएगा, वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के माध्यम से दिया जाएगा। I move to the next, which deals with contractors. अब मैं आगे बात करूंगी कॉन्ट्रैक्टर्स All की। Government of India agencies, such भारत as सरकार की railways, सारी एजेंसियां, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, CPW will आदि now give 6 months extension without any cost to the contractors. उनको 6 महीने So के लिए that extension should cover
एक्सटेंशन दिया जाएगा or goods and services contracts that they have with central government agencies. They can take additional 6 months to comply with the contract conditions. उनको 6 महीने के लिए जो निर्माण की शर्तें हैं उनको पूरा करने के लिए अतिरिक्त 6 महीने दिए जाएंगे। So the extension is up to 6 months is what I'm being told. तो ये एक्सटेंशन 6 महीने तक है work or cover even goods and services contracts. जो कवर कंस्ट्रक्शन वर्क या गुड्स एंड It सर्विस also कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। cover completion of works and intermediate milestones that they इसके may अलावा have. जो This will also इंटरमीडिएट cover माइलस्टोन बनाने and वाली extend एजेंसीज हैं concessional period which is वो भी इसमें कवर होंगी। contracts. So पीपीपी even the concessional कॉन्ट्रैक्ट के period तहत जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो भी इसमें कवर होंगी और उनको 6 महीने तक का And in एक्सटेंशन order दिया to जाएगा। facilitate greater liquidity which they can obtain, government agencies सरकारी एजेंसियां will partially release bank guarantees आंशिक तौर पर बैंक गारंटी रिलीज करेंगी। partially completed contracts. So if a particular जो contract is completed, कॉन्ट्रैक्ट आंशिक रूप से पूरे हो चुके हैं, to that some extent, पूरे तौर पर नहीं, partial तो जितना पूरा हो bank चुका है guarantees उतना तक will also be released, बैंक गारंटी भी रिलीज की जाएगी will improve. ताकि कैश फ्लो नकदी का संचार बना रहे। 200 करोड़ तक के टेंडर्स ग्लोबल नहीं होंगे, एक वो राहत दी गई। अब उसके बाद जो अभी काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं देश भर में, चाहे वो रेलवेज का हो, सड़कों का हो, हाईवेज का हो, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स का हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हों, क्योंकि कोविड के कारण ये समस्या खड़ी हुई, तब उनको 3 महीने से ज़्यादा 6 महीने तक की राहत इसमें दी जा सकती है एक्सटेंशन के रूप में, ताकि उनको कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। और जो ऑब्लिगेशंस थी उनकी, उसके कारण दिक्कत आ सकती थी, इसलिए प्रावधान किया गया है ताकि मुकदमेबाजी या बाकी सब ना हो और मानसिक रूप से भी ठीक रहे और अच्छा काम करके समय पर पूरा कर सकें। तो 6 महीने तक की इनको राहत दी गई। और यही नहीं, जो पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी जो कंसेशन पीरियड है उसमें भी ये राहत 6 महीने तक की दी जा सकती है, पर मैक्सिमम जो है 6 महीने तक हो सकता है। केस टू केस मैटर करेगा। और जो सिक्योरिटी दी जाती थी पार्शियल, उसको रिलीज किया जा सकता है आंशिक रूप से। मान लीजिए मैं कोई ठेका लिया है, 70% किसी ने काम किया और उसके एवज में उसकी आंशिक रूप से वो बैंक गारंटी को वापस किया जा सकता है, ताकि उसके पास और लिक्विडिटी और काम करने के लिए आ सके। एक बहुत बड़ी राहत इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स को भी देश भर में देने का एक प्रावधान किया है। 80% की होगा तो उसके अनुसार, 60% की होगा तो उसके अनुसार, लेकिन कुल मिलाकर उसके पास पैसा ज्यादा आए ताकि वो कामकाज में उसको कहीं दिक्कत ना आए। I've come to the last two of today's announcements. मैं आज के आखिरी 2 और घोषणाओं की तरफ आऊंगी, जिसमें से एक रियल एस्टेट है Direct taxation related relief और अगला 3 different aspects. डायरेक्ट टैक्सेशन रिलीज से जुड़ा हुआ, जिसमें 3 कदम होंगे। Next is on the taxation. पहला रियल एस्टेट, दूसरा In the डायरेक्ट real टैक्सेस। estate matter, रियल एस्टेट में the Urban Development Ministry shall शहरी विकास मंत्रालय advisory to the states and the union राज्यों को एक एडवाइजरी so that the issue regulatory करेगी authorities are given clear picture ताकि रेगुलेटरी that they अथॉरिटीज can treat the COVID-19 period as an event where you can को invoke एक the क्लियर force पिक्चर मिल सके। measure. In other words, they can treat it as an act of God, and to that extent, be Tak- flexible about the execution of the contract signed. This will also mean that with the necessary changes, they will have to issue fresh project registration certificates. वो They नए can extend प्रोजेक्ट the रजिस्ट्रेशन registration and the सर्टिफिकेट इशू completion करेंगे। dates. Suo motu, they can do it by खुद वो ये 6 कर सकते हैं months for all registered projects. सभी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के लिए। On or before 25th March 2020. रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन Using डेट the force measure 6 महीने के लिए। clause, they can suo motu वो extend खुद the registration आगे
and completion date by 6 months. 6 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट The बढ़ा project सकते हैं। was registered on or अगर प्रोजेक्ट after रजिस्टर्ड है 25th March 2020. 25 So they need not मार्च be individual 2020 applications के बाद separately for it. They can suo motu do it. They can also issue fresh वो एक project अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो registration certificates अगर उसका रजिस्ट्रेशन automatically with revised time. 2020-25 मार्च तक एक्सपायर होता है उसको वो आगे बढ़ा सकते हैं। And got fixed because of the coronavirus will not suffer. ताकि कोरोना वायरस के These चलते वो measures, we think, will de-stress developers परेशान ना हो, and उनको इसका real estate industry, खामियाजा ना भुगतना which is पड़े already in difficulty, will benefit with the new timelines. और नई टाइमलाइंस भी आगे बताई जा सकती है। कोविड-19 का प्रभाव हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ा होगा और इसके लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ये राज्य की सरकारों को और यूटीज को एडवाइस भी करेगी कि उनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो एक प्रावधान करें कि जो रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट है उसको सुओ मोटो 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए और इसकी जो 25 मार्च तक जो एक्सपायरी डेट थी यानी कि उसको 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए और इसमें कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशंस मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। जो 25 मार्च तक थी उसको वैसे ही 6 महीने तक का आगे विस्तार कर दिया जाए, उसको आगे अवधि को आगे बढ़ा दिया जाए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी यही अनुरोध किया गया है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के माध्यम से जाएगा कि 3 महीने तक पीरियड उसको भी आगे बढ़ा दिया जाए और जो फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो भी रिवाइज टाइमलाइंस के साथ दे दिए जाएं। तो इसी तरह से रेरा के अंतर्गत जो टाइमलाइंस है उसको आगे बढ़ाने की जो बात कही गई है इसमें विस्तार में कही गई। I move over to talking about the tax-related proposals, which is my last. अब मैं टैक्स से जुड़े प्रस्तावों पर बात करूंगी। You're fairly familiar with the TDS and the TCS tax deductions which आप happen. TDS और We have TCS now from, कटौती let us से say, को अच्छे से वाकिफ हैं। till 31st March 2021, reduced the TDS rates and the TCS rates by 25% of the existing rate. So if the existing rate is 100, it will be reduced by 25%. TDS और TCS के रेट And this shall 25% apply तक to all payments, घटा दिए जाएंगे। payment for contracts or professional fees or कॉन्ट्रैक्ट, interest or प्रोफेशनल rent फीस, or dividend ब्याज, or commission किराया, or डिविडेंड, brokerage. कमीशन, All of ब्रोकरेज, these will be eligible वो for सभी this इसी 25% rate 20% रेट रिडक्शन, 20% कटौती के लिए पात्र And as I होंगे। said, this will be coming into force from tomorrow and last ये कल से ही लागू हो जाएगा 31st 2021 और 31 मार्च 2021 तक लागू होगा। We think will और हम सोचते हैं nearly कि 50,000 crores इस कटौती की वजह से 50,000 करोड़ रुपए का फायदा लोगों तक पहुंचेगा। reduction alone is going to give 50,000 crores. केवल इस कटौती की वजह से लोगों को 50,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा और उनके हाथ में ये पैसा आएगा। जो TDS रेट्स हैं वो सभी नॉन सैलरीड पेमेंट वालों को, रेजिडेंट्स को, और TCS रेट जो है उसमें 25% की कटौती की गई है फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए और इससे 50,000 करोड़ रुपए का लगभग लाभ आम जनता को मिलने वाला है। यानी कि अगर मेरा 100 रुपया बनता था तो मैं 100 रुपये की बजाय अब 75 रुपये दूंगा और उसमें 25% की कटौती की गई है। तो एक बहुत बड़ी राहत कार वेतनभोगी इन सबके लिए, नॉन सैलरीड पेमेंट टू रेजिडेंट्स, इनके लिए की गई है। The next is set of dates which are getting extended. अब मैं कुछ तारीखों के बारे में बताऊंगी जो आगे बढ़ाई गई हैं, डायरेक्ट टैक्स से जुड़ी हुई हैं। pending refunds to सारे charitable अटके trusts हुए and रिफंड non-corporate businesses and professions
चैरिटेबल ट्रस्ट और नॉन कॉरपोरेट बिजनेस या पेशेवरों के हैं, जिसमें प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP और कोऑपरेटिव शामिल हैं, तुरंत जारी किए जाएंगे। Quite a lot of refunds which were either 5 lakhs or less. हमने बहुत सारे रिफंड जो 5 लाख या उससे कम है, Waited for their वो refund for a long time. इंडिविजुअल के जो बहुत देर से अटके हुए थे, जारी किए हैं, 14 lakh people had benefited. जिससे 14 लाख लोगों को फायदा पहुंचा है। अब हम चैरिटेबल ट्रस्ट और नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस के अटके हुए रिफंड, प्रोफेशनल्स, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP और कोऑपरेटिव्स के रिफंड को तुरंत जारी करेंगे। कुछ इसमें स्मॉल पार्टनरशिप भी हो सकती हैं। सबके रिफंड को तुरंत जारी किया जाएगा। ये उनका पैसा है और वो उनके हाथ में तुरंत आएगा। सभी तरह के इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट 2019-20 के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी 31 जुलाई 2020 तक और 31 अक्टूबर 2020 तक से 30 नवंबर 2020, 31 जुलाई 2020 से 31 अक्टूबर से 30 नवंबर 2020 तक, और टैक्स ऑडिट 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दी जाएगी। तो इसलिए अब लोगों को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनको रिफंड बढ़ाना होगा। उनको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो टैक्स के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं। असेसमेंट की तारीखें बाढ़ कर दी गई हैं, जो बाढ़ हो गई 30 सितंबर 2020 तक। Date of assessments getting barred as on 30th September 2020 is now being extended to 31st December 31 दिसंबर 2020 तक असेसमेंट की डेट जो कि बाढ़ हो जाती है 31 सितंबर 2020 तक, उसको बढ़ाकर barred as of September 2020. फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।